Assalamu alaikum. This is second part of the poem Stopping by Woods on a Snowy Evening. In the first part we studied the poem. I had explained it. This poem has two meanings. I had explained both the meanings in the first part. If you have not seen that part, go to the description. A link is given there. You can see it there. In this second part, we will discuss questions and answers from margin space as well as English workshop. Now let us start with the questions from the margin space. The first question is, where has the poet stopped? It's a very simple question. The answer is given in the title of the poem, Stopping by Woods on a Snowy Evening. So the answer is by woods. Where has the poet stopped? By the woods. Second question is, what season of the year is described here? There are three main seasons: summer, winter and monsoon or rainy season. Which season is described in this stanza, this poem? As it is a snowy evening, snow is falling, we can easily say the season mentioned in this poem is winter. So the answer is winter. Third question, what time of the day is described here? Time of the day. It is also given in the title of the poem, Stopping by Woods on a Snowy Evening. So the answer is evening. Question 4. On what date every year is the darkest evening? On which day comes the darkest evening? What do you mean by darkest evening? Darkest evening means longest night of the year. It falls on the shortest day. And we have studied it in the geography that 21st December is the shortest day and the longest night. That is why the darkest evening of the year will fall on 21st December. Next question is, list the sounds mentioned in the poem. I think the book they want to ask the question that list the sound repeated in the poem. Which sound are repeated? So we had seen in the first lecture. See the first line. The sound V is repeated. Whose woods these are, I think I know. The repeated sound is V. Now see the first line of the fourth stanza. The woods are lovely, dark and deep. The repeated sounds are D. So the answer of this question is V and D. How to write V and D? Simply write W and D. Question 6. Why does the traveler have to leave the lovely woods? The traveler wanted to stay there, but he had to leave. उसको छोड़ के जाना पड़ा वहां से. Why? क्यों? The reason is given in the last stanza. But I have promises to keep. इसको लिखेंगे कैसे? The traveler has promises to keep. Because लगाएंगे पहले. Because the traveler has promises to keep. Next. Now come to English workshop. Question 1 is, put tick mark in front of true statement or cross mark in front of the false statement. अब समझ में आ गया होगा आपके, सही जो स्टेटमेंट है उसको टिक मार्क करना है और जो गलत है उसको क्रॉस मार्क करना है. तो ए है, द स्पीकर स्टॉप्स टू वॉच रेन फॉलिंग अमंग द ट्रीज. स्पीकर रुकता है किस लिए? टू सी दैट रेन इज फॉलिंग. नो, किस लिए रुकता है? वो स्नोफॉल देखने के लिए रुकता है.
तो rain falling is not the correct statement, that's why this is wrong statement, so you will put cross mark. Second B statement is the owner of the woods is known to the speaker. स्पीकर जानता है ओनर को, वो वुड जिसका है, वो जंगल जिसका है उसको जानता है. यस, हमको कैसे समझ में आया कि वो जानता है? वो कहता है सेकेंड लाइन में पोएट के हिज हाउस इज इन द विलेज, और फर्स्ट लाइन में भी कह रहा है whose woods these are, I think I know, मुझे पता है किसके वुड्स है, तो वो उसको जानता है. that's why it is the correct statement, you will put tick mark. C statement, the horse is worried about the cold and wants to keep going. The horse is worried about the cold. घोड़ा फिक्रमंद है, and he wants to keep going, वो जाना चाहता है. यस, वो जाना चाहता है, इसीलिए तो वो हार्नेस बेल्स देता है, अपने बेल्स आवाज करता है. मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो आप, अपने मास्टर को पूछता है, इससे समझ में आता है कि he wants to go. That's why this statement is correct. D statement, the speaker doesn't emphasize upon the beauty of the woods he is passing through. Doesn't emphasize on the beauty of the woods. वो जो जंगलात की खूबसूरती है उस पर एम्फसाइज नहीं कर रहा है, उस पर जोर नहीं देता है. नहीं, वो तो जोर देता है, वो इसीलिए रुकना चाहता है कि वहां पे खूबसूरती है. तो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यू विल पुट क्रॉस मार्क. सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड आउट लाइन और लाइन्स फ्रॉम द पोएम एज अ प्रूफ फॉर द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन. इसको कैसे करना है? कुछ एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, ये एक्सप्लेनेशन पोएम की किस लाइन से साबित होती हैं, वो लाइन्स आपको ढूंढ के लिखने हैं. वो एक लाइन भी हो सकती है, एक से ज्यादा लाइन्स भी हो सकते हैं. तो फर्स्ट ए है, देयर इज नो वन टू कैच द स्पीकर ट्रेसपासिंग. ट्रेसपासिंग मतलब गुजरता है, जब स्पीकर वहां से गुजर रहा है तो देयर इज नो वन टू कैच द स्पीकर, स्पीकर को पकड़ने वाला, उसको देखने वाला वहां पे कोई नहीं है. ये किस लाइन से साबित होता है, किस लाइन में ये बात बताई हुई है? सिंपल है. सेकेंड लाइन फर्स्ट स्टैंजा की क्या है? ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर. वो मुझे नहीं देखेगा, यहां पे रुकते हुए कोई भी नहीं देखेगा. तो दिस इज द आंसर. द लिटिल, सेकेंड स्टेटमेंट, द लिटिल हॉर्स ड्रॉ हिज मास्टर्स अटेंशन. अपने मास्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, हॉर्स ने खींचा अपनी तरफ. ये किस लाइन से पता चलता है? तो ये है he gives his harness bells a shake, थर्ड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन. इसके बाद सी स्टेटमेंट, his horse seems anxious to keep going. वो जाने के लिए फिक्रमंद है, उसका हॉर्स जाना चाहता है आगे. ये किस लाइन से पता चलता है? My little horse must think it clear. उसको अजीब लगा होगा रुकने के लिए. वो दोनों लाइन लिखना है आपको. My little horse, सेकंड स्टैंजा की फर्स्ट और सेकंड लाइन, My little horse must think it clear to stop without a farmhouse near. इससे पता चलता है कि वो जाना चाहता है. नेक्स्ट, द स्पीकर प्रेफर्स टू स्टे बट इज फोर्स्ड टू मूव ऑनवर्ड्स. स्पीकर रुकना चाहता है बट फोर्स्ड टू मूव, लेकिन उसको जाने के लिए वो मजबूर है. ये किस लाइन से पता चलता है? तो देखिए लास्ट स्टैंजा के फर्स्ट टू लाइन्स, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप. खूबसूरत है तो वो रुकना चाहता है, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, मुझे प्रोमिसेस हैं पूरे करने हैं इसलिए जाना पड़ेगा. तो ये दोनों लाइन्स हमारे हैं आंसर्स. द पोएम इज सेट इन द बायगॉन एरा. बायगॉन एरा मीन्स ऐसा जमाना जो गुजर चुका है, पिछले जमाने में ये पोएम हुई है. ये किस लाइन से पता चलता है? ये पता चलता है My little horse must think it clear to stop without a farmhouse near. थर्ड स्टैंजा के फर्स्ट एंड सेकंड लाइन, इससे पता चलता है. कैसे? ये हॉर्स पे ट्रैवलिंग कर रहा है, इसका मतलब ये आज के जमाने में नहीं है. आज के जमाने में हॉर्स पे ट्रैवलिंग नहीं होती है आमतौर पर. तो इन दो लाइन से पता चलता है, इसलिए दोनों लाइन्स हमारे हैं आंसर्स. क्वेश्चन 3, द पोएम इज बिलीव्ड टू हैव अ रेफरेंस टू द पोएट्स लाइफ इटसेल्फ. पोएम के मैंने आपको बताए थे दो मीनिंग है. एक तो वो जो वर्डली मीनिंग, वर्ड के जो मीनिंग आ रहे हैं, और वो जो इसके लाइफ से रिलेटेड है. तो व्हाट वुड द फॉलोइंग सिग्निफाई? नीचे कुछ चीजें दी हुई हैं, वो किस चीज की तरफ इशारा करती है हमको बताना है. चूज फ्रॉम द ब्रैकेट बिलो. तो
पहले पढ़ता हूं मैं स्टेटमेंट्स। ए, द स्पीकर्स जर्नी, स्पीकर का जर्नी, सफर, ये ब्रैकेट में जो जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनमें से किस चीज से साबित होता है? ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओल्ड एज, लाइफ, डेथ या एवरलास्टिंग पीस। स्पीकर की जर्नी किस चीज को सिग्निफाई करती है? सिंपल है, लाइफ को, मैंने बताया था आपको। सेकंड, स्नोई इवनिंग, ये किस चीज को सिग्निफाई करता है? तो ये करता है ओल्ड एज को। लवली डीप डार्क वुड्स, लाइफ को। प्रोमिसेस, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सॉरी, लवली डीप डार्क वुड्स ये करेंगे एवरलास्टिंग पीस को, प्रोमिसेस, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, और स्लीप ये डेथ को। क्वेश्चन 4, टेल वेदर द राइम स्कीम ऑफ द फॉलोइंग स्टांजास इज राइट और रॉन्ग। फॉर द रॉन्ग राइम स्कीम गिव द करेक्ट वन। देखते हैं सही है या नहीं। हमने पहले ही निकाली थी फर्स्ट स्टांजा की, फर्स्ट लेक्चर में। क्या है उसकी राइम स्कीम? ए ए बी ए, वो तो करेक्ट है। अब सेकंड स्टांजा में देखिए, कियर, ये कियर जो है फर्स्ट स्टांजा के हियर का राइमिंग वर्ड है, तो हियर को हमने दिया था बी नंबर, तो इस कियर को भी हम देंगे बी। तो कियर और नियर भी राइमिंग वर्ड है, तो नियर को भी मिलेगा बी, कियर नियर बी मिल गया। लेक अलग है, उसको मिलेगा सी, तो बी बी सी, लास्ट में ईयर आया तो वापिस हो गया बी, तो बी बी सी बी सेकेंड स्टांजा की करेक्ट है। इसके बाद थर्ड स्टांजा, तो देखिए थर्ड स्टांजा में जो शेक है ये सेकेंड स्टांजा के लेक का राइमिंग वर्ड है, इसलिए शेक को हम देंगे सी, मिस्टेक को भी देंगे सी, तो सी सी। स्वीप ये डिफरेंट है तो आएगा डी, और फ्लेक ये शेक और मिस्टेक का राइमिंग वर्ड है तो इसको आएगा सी, तो हो गया सी सी डी सी, तो ये हो गया करेक्ट। अब फोर्थ स्टांजा, डीप, ये थर्ड स्टांजा के स्वीप का राइमिंग वर्ड है तो इसको नंबर आना चाहिए डी, तो डी दिया हुआ है वहां पे, तो डीप, कीप, स्लीप, स्लीप सब एक दूसरे के राइमिंग वर्ड है, सभी को डी आना चाहिए, लेकिन जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है डी डी ई डी दिया हुआ है, तो ये है फोर्थ वन रॉन्ग, और इसका करेक्ट आएगा डी 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 डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, गिव योर ओन राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। ओन देना है, पोएम में के नहीं। हाउस, इसका राइमिंग वर्ड बताइए आप, माउस है, और भी हो सकते हैं। उसी तरह से बी, वुड्स, उसका बनेगा फूड्स। सी, इजी, उसका है बिजी। डी, विंड, हिंड, डार्क, शार्प, वॉच, नॉच। ये मैंने कुछ एग्जांपल के तौर पे बता दिए हैं, और भी कुछ राइमिंग वर्ड्स हो सकते हैं, वो आप लिख सकते हैं, या फिर मैंने जो बताए हैं वो भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 6, मैच द लाइंस ऑफ द पोएम विद देयर फिगर्स ऑफ स्पीच। लेक्चर 1 में मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच और लाइंस ऑलरेडी बता दिए हैं, आप उसमें से देख सकते हैं। क्वेश्चन 7, मैच द वर्ड्स गिवन इन ग्रुप ए विद देयर मीनिंग्स इन ग्रुप बी। ग्रुप ए में वर्ड्स हैं, ग्रुप बी में उनके मीनिंग है, मैच करना है। मिस्टेक की क्या मीनिंग होते हैं? बहुत ही सिंपल है, एरर। डाउनी फ्लेक्स की मीनिंग तो मार्जिन स्पेस में दिए हुए हैं, और वो है सॉफ्ट स्नो फॉलिंग। नंबर 3, वुड्स, उसका इंडियन इंग्लिश में मीनिंग होंगे जंगल। कियर, उसका है स्ट्रेंज। अब कुछ बुक्स में लास्ट फिफ्थ वर्ड नहीं दिया हुआ है, वो मैं बता देता हूं आपको। नहीं, फिफ्थ वर्ड नहीं दिया हुआ है, लेकिन बी कॉलम में फिफ्थ वर्ड दिया हुआ है आइस, तो वो किसी के साथ मैच नहीं करता है। क्वेश्चन 8, कंप्लीट द फॉलोइंग वेब डायग्राम्स बाय एडिंग सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द बॉक्सेस। वन इज डन फॉर यू। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड हमको बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्राइबिंग वर्ड? डिस्क्राइबिंग वर्ड मींस एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं? किसी नाउन के बारे में मालूमात देने वाले, यानी कोई भी नाउन कैसा है ये बताने वाले वर्ड्स। तो विंड एक वर्ड दिया हुआ है, वो एक नाउन है, वो कैसी है ये बताने वाला वर्ड हमको लिखना है। पोएम में से लेना जरूरी नहीं है, आप कोई भी ले सकते हैं। विंड कैसी होती है? कोल्ड हो सकती है, फ्रेश होती है, बाइटिंग विंड होती है, स्लो विंड, फास्ट विंड, तो इस तरह से हो गया। इवनिंग, सेकेंड जो क्वेश्चन है, कैसी इवनिंग? एक आंसर दिया हुआ है डार्केस्ट इवनिंग। अब और आप लिख सकते हैं ब्राइटेस्ट, रेनी, ब्यूटीफुल, प्लेजेंट वर्ड एटसेट्रा। आप कुछ और भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 9,
Pick out lines from the poem that contain imagery. Write them in your notebook. Imagery किसमें बताई गई है? इमेज क्रिएट की गई हो लाइंस के जरिए से. हम जैसे ही हम पढ़े कोई इमेज हमारे सामने आए तो ये किस लाइन से पता चलता है? तो वो तो देखिए, whose woods these are, I think I know. woods जहन में आते हैं तो इसमें इमेजरी है. उसी तरह से लास्ट स्टैंजा की जो फर्स्ट लाइन है उसमें सबसे ज्यादा है. The woods are lovely, dark and deep. woods कैसे हैं? ये इमेज इसकी हमारे जहनों में बनाने की कोशिश हो रही है. तो दिस इज द आंसर. Last question of this poem. Last question. Question 10. Prepare a set of questions to interview a person who has just returned from a trek in the woods, and B, a person who has recently scaled Mount Everest. So you have to make the set of questions to take interview. This question falls in the category of writing skill. So we will cover this question when we cover writing skill. I hope you are getting answers, you are understanding the answers, and you are understanding the poem also. So tell me if you have doubt in the comment section. Write your comments, and if you like the poem, like it and share it so that others will get benefit, and tell me in the comment section whether you like it or not. Goodbye.